Good evening, my dear students. How are you? ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲੀਅਮਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਫਿਲ ਇਨਟੂ ਅ ਵੈਸਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਵੋਲੀਅਮ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, try to make a hollow cylinder and hollow cone like this with the same base radius। ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ hollow cone and hollow cylinder ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਡ ਉਹ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਵੋਲੀਅਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਰੇਡੀਅਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਡਾਇਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ d/2 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਐਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਚ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਦੈਨ ਐਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਸਕੁਏਅਰ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਐਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇਗੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ the height and the slant height of cone is given here. Height means h is given and slant height means l is given. Slant height means l is given here. ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਨ ਦਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਬਟ ਆਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ 7√7। ਦੈਨ 1/3 ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਰ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।
अगर मीटर दे विच डिमेंशनस ने तो मीटर क्यूब लिखांगे। इस तरह ही अगे 9th एग्जाम्पल। इस तरह नैक्सट एग्जाम्पल है, ये भी तुसी पढ़ लैनी है एक बार। इस तरह की एग्जाम्पल नाल दे सम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आ। एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। स्टार्टिंग दे विच ही सानू डायरैक्शन है कि पाए की वैल्यू तुसी ने 22/7 लैनी है। सो जे सानू किसी सम दे विच डायरैक्शन होएगी कि पाई की वैल्यू 3.14 लो तो ही आप 3.14 पाई यूज़ करांगे। अदरवाइज वी हैव टू यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। फस्ट पार्ट दे विच वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन पता करना है। रेडियस गिवन एंड हाइट गिवन है। हाइट गिवन है 7 सम। फॉर्मूला असी ने कराया सीगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो आर एंड एच दोवें गिवन ने। इस दे विच सानू सॉल्व करांगे। 1/3 पाई आप 22/7 यूज़ करनी है। आर 6 है, 2 टाइम्स लिखांगे। आर दी स्क्वेयर है। एच 7 है। एच सानू 7 गिवन है। मल्टीप्लाई 7। सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। इत्थे आपां तुहाडा आंसर आ जाएगा 264। डिमेंशन सेंटीमीटर सी, सो सेंटीमीटर क्यूब लिखांगे असीं। सेंटीमीटर क्यूब लिखांगे आंसर दे नाल। दिस विल बी योर आंसर। नैक्सट फॉर्म दे विच सानू रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। दोवें डिमेंशनस ही सेंटीमीटर दे विच नेगियां। रेडियस है जो 35/10 भी लिख सकते हैं डेसीमल हटा के। फॉर्मूला लगावांगे आपां 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज़ पुट करांगे। इसनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। सो इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करके 11 7 एंड 2 आएगा। डिनोमीनेटर दे विच अपने कोल सिर्फ 1 है हर जगह ते। मल्टीप्लाई करके दा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। सैकेंड पार्ट दे विच तुसी ने कॉनिकल वैसल दी कैपेसिटी पता करनी है इन लीटरस। सो ये सम करन तो पहला एक इंपॉर्टेंट नोट आ जिहड़ा तुसी वो नोट कर लेना अपनी नोटबुक ते कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये दोवें इंपॉर्टेंट नोट ने जिहड़े तुसीं ने नोटबुक ते लिख लेने हैं। सम दे विच सानू रेडियस गिवन है एंड स्लैंट हाइट गिवन है। इट मीनस आर दी वैल्यू गिवन है नाल एल दी वैल्यू गिवन है 25 सम। पर फॉर्मूले दे विच सानू पता वॉल्यूम दा फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये वॉल्यूम है कोन दा है। साडे कोल एच है जो मिसिंग है इत्थे। सो एच का तुहानू फॉर्मूला लिखाया सी फाइंड आउट करन दा कि एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर उदा स्क्वेयर रूट करूँगी। सो पहला आप एच की वैल्यू पता करांगे। एल साढ़े कोल 25 है। दी स्केयर माइनस आर 7 है, इसलिए 7 दी स्केयर दैन इहदा स्केयर रूट। 25 है जो वो साढ़े कोल 625 आ जाएगा उहदा स्केयर करके माइनस 49 7 दी स्केयर है। दैन एच फाइंड आउट करने लिए स्केयर रूट करना होएगा। दोवां नूं पहला सबट्रैक्ट करांगे तो साढ़े कोल 576 आएगा एंड जो 576 है ये 24 दी स्केयर है। सो ये फैक्टर की बन जाएंगे 576 से 24 × 4। एच की वैल्यू इतों तुहाडे कोल आएगी 24 सेंटीमीटर। ये वैल्यू नोट कर लेनी है। सैकेंड पार्ट दे फस्ट सम यूज़ होएगी। फॉर्मूले दे विच आपां वैल्यू पुट करांगे
1/3 बाय आर स्केयर एच। दैन सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे इसनूं, इस तो बाद 22 7 एंड 8 नूं मल्टीप्लाई करांगे। तुहाडा आंसर आ जाएगा इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपां ने इस दे विच कैपेसिटी पता करनी सी। तुहानूं ये पार्ट सैकेंड पार्ट शुरू करन तो पहले ही दस्सिया सीगा कि अगर असीं सेंटीमीटर क्यूब नूं लीटर्स दे विच करना है दैन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। सो आंसर तुहाडा आ जाएगा 3 जीरोज़ ने तां डेसीमल लगा देंगे आपां राइट हैंड साइड तो 3 डिजिट ने जिहड़े छड्ड के 1 डेसीमल 232 तो इस दे पिछे लिखोगे लीटर्स। ये तुहाडा आंसर हो जाएगा सैकेंड पार्ट दे फस्ट सम दा। हुण सैकेंड पार्ट दा सैकेंड सम है जिस दे विच सानू हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट मीनस एल इज़ गिवन हेयर 13 सेंटीमीटर। बट साडा फॉर्मूला हुंदा है वॉल्यूम ऑफ कोन दा 1/3 पाई आर स्केयर एच। 1/3 पाई आर स्केयर एच। साडे कोले एच तो है बट आर इत्थे नहीं है। आर नू फाइंड आउट करन लई भी असीं ने फॉर्मूला कीता सीगा एल स्केयर माइनस एच स्केयर। आर दी वैल्यू पता करांगे 13 स्केयर माइनस 12 स्केयर। इसे तुहाडे कोल आएगा आर दी वैल्यू फाइंड आउट करन दे लई 169 माइनस 144। आर विल बी 5 सेंटीमीटर तुहाडी आर आएगी। नोट कर लो ये। इस तरह है आपां जो वैल्यू है ये पुट करांगे फॉर्मूले दे विच। इस तो बाद सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। इस तो बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच नहीं होएगा तो आपां मल्टीप्लाई कर लांगे सिंपल। डिनोमीनेटर दे विच तुहाडे कोल 7 रहेगा। आंसर है जो इक्वेशन दा आएगा। बट ये भी सैकेंड पार्ट दा सैकेंड सम है। सो आपां इहदे विच कैपेसिटी दे विच कन्वर्ट करना गा मतलब कि लीटर्स दे विच कन्वर्ट करना वॉल्यूम नूं। दैन डिवाइड 1000 नाल भी होएगा। ये डिनोमीनेटर दे विच ऑलरेडी 7 है सो 1000 है जो इस दे नाल मल्टीप्लीकेशन च लगेगा। हुण सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे नूं 11/35 लीटर्स। ये तुहाडा आंसर होएगा सैकेंड पार्ट दे सैकेंड सम दा। वॉल्यूम नूं लीटर्स दे विच कन्वर्ट करन लई लगाया गया सी। नैक्सट थर्ड सम है जिस दे विच सानू हाइट ऑफ द कोन गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड इस दे नाल ही वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का सानू पता है फॉर्मूला इट मीनस ये वैल्यू सानू गिवन आ गई। आर की वैल्यू इस पता करनी है बट इस दे नाल ही दिता है कि पाई है जी तुसी ने 3.14 यूज़ करनी है। सो वैल्यूज़ पुट करांगे आपां दैन इक्वल टू 1570। इस तो बाद आर स्केयर है जो इधर रहेगा बाकी सो आपां इक्वल टू तो राइट हैंड साइड लेके जावांगे। सो 1/3 है रेसिप्रोकल होके 3/1 आएगा। 3.14 है जो पाई न्यूमीरेटर है इधर आके डिनोमीनेटर दे विच जाएगा बट इधर डेसीमल हटा के आप मल्टीप्लाई 100 लगा लाँगे न्यूमीरेटर दे विच। 15 है 1/15 आ जाएगा इक्वल टू तो राइट हैंड साइड जाके। हुण आपां इसनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। हुण साडे कोल सिर्फ 100 है जो इधर बचिया है। इट मीनस इक्वेशन दे विच साडे कोल आर स्केयर इक्वल टू 100 है। 100 है जो 10 की स्केयर है सो आर की वैल्यू तुहाडे कोल 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इत्थे
ये तुहाडा थर्ड सम का आंसर होएगा 10 सेंटीमीटर। आर स्क्वेयर सी इधर 100 सीगा, 100 है जो 10 की स्केयर है, स्केयर ना स्केयर कट होएगी एंड आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर थर्ड सम का आंसर। फोर्थ सम दे विच वॉल्यूम गिवन है, सम दे विच हाइट गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। पहला रेडियस ही फाइंड आउट होएगा, दैन आपां रेडियस नूं मल्टीप्लाई 2 करांगे। सो फॉर्मूले दे विच आपां वैल्यू पुट करांगे। हुण वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है साडे कोले, सानू पता है कि वॉल्यूम का साडे कोल फॉर्मूला हुंदा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोन का वॉल्यूम कर रहे हैं आपां, वॉल्यूम की वैल्यू अपने कोल गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसकी वैल्यू सानू ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 48 पाई। हुण पाई की आपां वैल्यू इत्थे पुट नहीं करांगे फॉर्मूले दे विच, 1/3 पाई इस तरह रखांगे क्योंकि जो राइट हैंड साइड जाएगी तो यह कटिंग हो जाएगी। आर स्केयर नहीं है सम दे विच, एच की वैल्यू 9 तुहानू गिवन है, इक्वल टू रखोगे तुसी 48 पाई। इधर सिर्फ तुहाडे कोले आर स्केयर रहेगा, इक्वल टू 48 पाई। पाई डिनोमीनेटर दे विच है, पाई इत्थे न्यूमीरेटर दे विच है, इसलिए इधर डिनोमीनेटर च जाएगी। 3 डिनोमीनेटर दे विच है, न्यूमीरेटर च रेसिप्रोकल होएगा। इसी तरह 9 है जो न्यूमीरेटर च है, डिनोमीनेटर च जाएगा। लैफ्ट हैंड साइड साढ़े कोले आर स्केयर रहेगा एंड राइट हैंड साइड है जो ये इक्वेशन बनेगी। हुण आपां इहनूं सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे। आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 16। सो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्केयर है इनू आपां 4 की स्केयर लिख सकते हैं, स्केयर ना स्केयर कट। आर की वैल्यू तुहाडे कोले 4 सेंटीमीटर आएगी, बट असी सम दे विच डायमीटर पता करना सी। डायमीटर जो रेडियस का डबल हुंदा है, सो डायमीटर की वैल्यू तुहाडे कोले आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये तुहाडा आंसर होएगा फोर्थ सम का। इस ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू असी इसलिए नहीं फिल की हैगी फॉर्मूले दे विच क्योंकि राइट हैंड साइड सी जो वॉल्यूम सानू वो 48 पाई दे विच दिता होया सीगा। अगर असी वैल्यू पुट कर लेंदे पाई की इधर तो सामने कंपलैक्स हो जाना सीगा। हुण असी फिफ्थ सम करांगे। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 20 मीटर डीप। तुसी इहदी कैपेसिटी पता करनी है किलोलीटर दे विच। एक कॉनिकल शेप का टोआ है, कोई पिट है, उसका डायमीटर गिवन है, तुहानूं पहलां दा रेडियस बनाओगे तुसी, एंड 12 मीटर डीप है। डूंघाई जो डैप्थ है इसनूं ही आपां एच भी लिख सकते हैं। 3.5 मीटर रेडियस आ जाएगा तुहाडा 35/20। 10 डेसीमल हटा के डिनोमीनेटर 2 ना मल्टीप्लाई होएगा क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है। एंड इस तरह ही हाइट यदि गिवन आ डैप्थ आ उसनूं ही आपां हाइट कहांगे, डैप्थ ही हाइट होएगी 12 मीटर। दोवें डिमेंशन साढ़े कोले मीटर दे विच ही नहीं है। फॉर्मूला लगावांगे आपां वॉल्यूम ऑफ कोन दा, सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे इहनूं। न्यूमीरेटर दे विच 11 एंड 7 रहेगा, डिनोमीनेटर दे विच आएगा 2। 77 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करोगे तो 38.5 किलोलीटर इहदा तुहाडा आंसर आ जाएगा सम दा। वॉल्यूम दिता होया है राइट सर्कुलर कोन दा, डायमीटर ऑफ बेस गिवन है, हाइट पता करनी है, स्लैंट हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया। पिछलियां क्लासां अगर तुसी अटेंड नहीं कीतियां हैगियां दैन पहला सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फीयर स्फीयर वाली क्लासेस लगा के आओ। इस दे थर्ड पार्ट दे विच असीं पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला ही यूज़ करांगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये सानू 6 सम दे विच वॉल्यूम गिवन है, फॉर्मूले दे विच वैल्यूज़ पुट करके इक्वल टू वॉल्यूम रखांगे।
डायमीटर सानू इस दे विच सम दे विच गिवन सी 28, सो रेडियस 14 आ जाएगा। एच आ जो पता करनी है, एच इस तरह इनू इक्वल टू रखांगे 9856 से। आफ्टर दैट जो एच है वो लैफ्ट हैंड साइड रहेगी, बाकी वैल्यूज असी राइट हैंड साइड शिफ्ट करांगे। सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे इनू आपां। सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे ਜਦੋਂ तक ये कॉमन टेबल ते जा रहा। सो न्यूमीरेटर दे विच 16 एंड 3 रहेगा। इस तरह एच की वैल्यू तुहाडे कोले 48 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आ जाएगी, जो पहला पार्ट सी साडा 6th सम दा। एच असी ने फाइंड आउट कर ली। आर ऑलरेडी असी सानू डायमीटर गिवन सी, उस तो असी ने पता की है 14 सी। हुण स्लैंट हाइट पता करांगे 48 सेंटीमीटर। आर साडे कोले गिवन सीगी, डायमीटर जो उस तो लेती है असी ने, डायमीटर गिवन सीगा 28, आर 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। एल का फॉर्मूला असी पिछली एक्सरसाइज दे विच कीता सीगा, एच स्केयर आर स्केयर का स्केयर रूट। सो एल की वैल्यू आ जाएगी अपने को इत्थे 48 का स्केयर एंड 14 का स्केयर, दैन इहदा स्केयर रूट। सो एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। सैकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट दे विच असी ने कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना, पाई आर एल। आर की वैल्यू आ जो उसी डायमीटर का हाफ करके फाइंड आउट कर ली, एंड एल की वैल्यू असी इस पार्ट दे विच ही फाइंड आउट की है। वैल्यूज़ पुट करांगे फॉर्मूले दे विच। कोन का फॉर्मूला है, वैल्यूज़ पुट करांगे 28 का हाफ 14 आएगा रेडियस। सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच करांगे इनू आपां अगे। दे विच आपां ने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पता करिया। ये तुहाडा 6th सम दे थर्ड पार्ट का आंसर सी। नैक्सट 7th सम है, अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इस रिवॉल्वड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ये दोवें 7th एंड 8th। एक ट्रायंगल ABC है, इज रिवॉल्वड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। सो इस तरीके नाल जो साडे कोल सॉलिड जिहड़ी फिगर आ ऑबटेन होएगी, उहदा वॉल्यूम पता करना। डायग्राम की हैल्प नाल ही समझांगे इनू। 7th एंड 8th सम जो तुहाडा दोवें की इकट्ठी ही डायग्राम बनाई जाएगी। ट्रायंगल है ABC, दैन इहदियां साइड्स तुहानूं डिमेंशनस गिवन ने 5 12 13। सानू पता है कि हाईपोटेन्यूज है जो आप 13 लवांगे, सब तो वड्डी साइड होंदी है वो। दैन आप लवांगे 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। जो 7th सम्स क्या गा कि अगर ये ट्रायंगल नूं आपां रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, ये तुसीं याद ही रख लेना गा। जिहड़ी साइड दे रिवॉल्व अबाउट कहा हुंदा है, याद रखना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही एक सेम ट्रायंगल की शेप बना देनी है, एक सॉलिड फॉर्म बनेगी, ये कॉनिकल सॉलिड शेप बन जाएगी। कोन आ तो ये फॉर्मूला भी किहड़ा लगेगा जो वॉल्यूम पता करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगेगा 1/3। आर तुहाडा की होएगा, इहदे विच आर तुहाडा 5 होएगा। टोटल साइड तो मिलके 5 5 10 बना रही है, बट आप तो रेडियस लेना होंदा, आर 5 होएगा एंड एच की वैल्यू 12 होएगी। आप डिमेंशनस ने जिहड़ियां वो भी लिख लांगे इस तरह ही। बट इस दे विच क्या हैगा कि जिहड़ी ट्रायंगल आ वो रिवॉल्व किहड़ी साइड दे नाल हो रही है 5। तुहानूं दस्सिया सी कि रिवॉल्व अबाउट जिहड़ी साइड नाल लिखता उहदे नाल एक ट्रायंगल बना देनी है, तो हुण ट्रायंगल इस साइड बनेगी, दैन ये साइड भी 12 हो जाएगी। फर्क सिर्फ कितने पेगा, हुण तुहाडा फर्क आएगा जो सिर्फ पहला आप रेडियस लिया सी 5, हुण तुहाडा रेडियस होएगा 12। फॉर्मूला उवें लगेगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट आ, ध्यान नाल करना गा।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਫਿਗਰ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਕੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਐਚ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਇੱਧਰ H12 ਸੀ, ਇੱਧਰ H5 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 7th ਐਂਡ 8th। ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਹੈ ਜੋ 5 ਹੈ, 7th ਦੇ ਵਿੱਚ R 5 ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ H12। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ R ਹੈ ਉਹ 12 ਸੀ ਐਂਡ H5। ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ। 7th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ। 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7th ਐਂਡ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। 7th ਕਰਾਂਗੇ 5 × 5 ਐਂਡ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 100 ਆ ਗਿਆ। 22/7 ਹੈ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 × 5 × 4 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ 100 ਪਾਈ, ਪਰ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ 7th ਐਂਡ 8th ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਪਾਈ ਰੇਸ਼ੋ 240 ਪਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਰਿਵੋਲਵਡ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨੀਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ 10.5 ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਆ ਜੋ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 105 105 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 20 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਆਪਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਕੇ ਸੀਗਾ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ 20 ਆਏਗਾ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਇਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 86.625 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ πr_l। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ r ਹੈ ਬਟ l ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। l ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ h² ਪਲੱਸ r² ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾइंड आउट करना ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ l फाइंड आउट करनी पेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੋ h² ਪਲੱਸ r² ਹੁੰਦਾ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ 5.25 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਏਗਾ 27.5625 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट करनी है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਵੀ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। 6.04 ਮੀਟਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 99.66। ਇਹ ਅਪਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀ ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ l ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट ਕੀਤੀ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ 99 ਅਪਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ।
थैंक यू सो मच।